चलिए। My dear students, I am going to teach you a new lesson of English prose. I want to ask some questions on the basis of previous knowledge. Have you heard the name of Akbar? Yes, Akbar was a great emperor. Do you know Tansen? Tansen was a great musician, great bard of Akbar's court. Why did Akbar like Tansen? Akbar liked Tansen because he was fond of his music. Good. We have come on the main point, music. So, we shall study our Indian music, stories and anecdotes. Our Indian music, stories and anecdotes. Our Indian music, हमारा भारतीय संगीत, स्टोरीज कहानियां, एंटीडोट्स मीन्स होता है लघु कथाएं. About the author, author's name R. Srinivasan. R. Srinivasan is an Indian writer in English. He was born in 1859. He died 1945. He has written short stories, in music reviews and essays on the social subjects. He was too close महात्मा गांधी. अब मैं किताब पढ़ाऊंगा, मैं लाइन पढ़ते जाऊंगा, आप लोग मेरे साथ लाइन पढ़ते जाइएगा. The history of Indian music is brimming with stories and anecdotes. Why? The very origin of music and other fine art is in itself a story. The creator Brahma made this universe. He created a variety of wonderfully beautiful and enchanting things. He created the majestic mountain ranges, the thundering waterfalls, and giant forest trees, as also the nimble deer, the colorful peacocks, and the exquisite flowers. He filled his creation with beauty, charm and splendor. But he was sad. His consort Saraswati asked him the reason for his sadness. Brahma said, "It is true, I have created all this wonder and charm and showered beauty everywhere. But what is the use? My children, the human soul, simply pass them by. They do not seem to be sensitive to the beauty around. It seems to have been wasted on them. This creation seems to be purposeless." Saraswati understood his feeling and told him, "Well, let me do my share in the great work. You have created all this beauty and splendor. I shall create in our children the power to respond, to appreciate and be uplifted by them. I shall give them music and other arts which will draw out from deep within them the capacity to respond to the majestic splendor and exquisite charm and wondrous beauty all creation." The great muse then gave us music and other fine arts in the hope that through them man would understand something of divine in his manifestation. A strange story, yes, but it has great moral. One of the basic truths on which all Indian art is developed is that true art is never made to order. It comes as a result of irresistible inner urge. We hear song of Tyagaraja and are enthralled. We see a majestic temple tower, gaze on it with wonder. We sum our ancient sculpture and feel thrilled. Why? Behind all such work of art is great spiritual work. The artist who gave them to us poured their devotion into the shape of such exquisite work of art.
is an act of self-effacing dedication. मैं अब आप लोगों को डिफिकल्ट वर्ड बताऊंगा। डिफिकल्ट वर्ड, फर्स्ट वर्ड है ब्रीमिंग विथ, BRIMMINGWITH, ब्रीमिंग विथ। ब्रीमिंग विथ माने होता है भरा हुआ। इसका सेम मीनिंग फुल ऑफ। ये परीक्षा में मैचिंग पूछेगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। फुल ऑफ, एंटीडोट्स माने लघु कथाएं, दंत कथाएं, शॉर्ट स्टोरीज अंग्रेजी में सेम मीनिंग होगा। यूनिवर्स माने होता है ब्रह्मांड, संसार, सेम मीनिंग वर्ल्ड होगा। जियांट माने विशाल, इसका सेम मीनिंग ह्यूज, HUGE। निम्बल माने अति चंचल, निम्बल वर्ड है, निम्बल माने अति चंचल। क्विक, QUICK। पर्पजलेस, पर्पजलेस मीन्स होता है उद्देश्यहीन। सेम मीनिंग इसका होगा एमलेस, IAMLESS। सेम मीनिंग बच्चों सब आप लोगों को बहुत बढ़िया से याद करना है, क्योंकि परीक्षा में 4 नंबर का ये पूछता है। अब मैं आपका हिंदी अनुवाद, आप लोगों को हिंदी अनुवाद बताऊंगा, ध्यान से देखिए। द हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूजिक इज ब्रीमिंग विथ स्टोरीज एंड एंटीडोट्स। मीनिंग बताए थे, ब्रीमिंग विथ भरा हुआ, एंटीडोट्स माने लघु कथाएं। भारतीय संगीत का इतिहास कहानियों तथा लघु कथाओं से ओतप्रोत है, भरा हुआ है। Why the very origin of music and other fine arts is in itself story. संगीत तथा दूसरी ललित कलाओं की उत्पत्ति अपने आप में, itself, अपने आप में एक कहानी है। Why? क्यों? The creator ब्रह्मा made this universe. सृष्टिकर्ता ब्रह्मा ने इस ब्रह्मांड को बनाया, इस संसार को बनाया। He created variety of wonderfully beautiful and enchanting things. वह आश्चर्यजनक, सुंदर, अनमोहक वस्तुओं की विविधता का, अनेकता की रचना किया। He created the majestic mountain ranges, the thundering waterfalls. वह बड़े बड़े, He created variety wonderfully beautiful. He created the majestic mountain ranges. वह शानदार पर्वत श्रृंखलाएं, the thundering waterfalls, गरजते हुए झरने, giant forest trees, बड़े बड़े जंगली पेड़, as also the nimble deer, और अति चंचल हिरन, कलरफुल पिकार, रंग बिरंगे मोर, एंड एक्सक्विजिट फ्लावर्स, अति सुंदर फूलों की रचना किए। एक बार और देखिए, वह शानदार पर्वत श्रृंखलाएं, गरजते हुए झरने, बड़े बड़े जंगली पेड़, अति चंचल हिरन, रंग बिरंगे मोर तथा अति सुंदर फूलों की रचना किए। He filled his creation with beauty, charm, splendor. वह अपनी सृष्टि में सुंदरता, आकर्षण, वैभव को फील्ड कर दिए, वैभव को भर दिए। But he was sad, परंतु दुखी थे। His consort सरस्वती asked him the reason for his sadness. उनकी पत्नी सरस्वती उनके दुख का कारण पूछी। ब्रह्मा सेठ, ब्रह्मा ने कहा, इट इज ट्रू, यह सत्य है। I have created all this wonder and charm. मैं यह सब आश्चर्यजनक, आकर्षण वस्तुओं की रचना किया हूँ। Shower beauty everywhere, और प्रत्येक जगह सुंदरता की बौछार किया हूँ। But what is the use? परंतु क्या फायदा है, क्या यूज है? My children, the human soul simply pass them by. मेरे बच्चे, मानव आत्माएं
साधारण तरीके से उसके पास से गुजर जाते हैं। They do not seem to be sensitive to the beauty around. चारों ओर सुंदरता को देखकर संवेदनशील होना प्रतीत नहीं होते हैं। It seems to have been wasted on them. यह तो उन पर सब व्यर्थ होना प्रतीत होता है। This creation seems to be purposeless. Creation सृष्टि seem माने प्रतीत होना, purposeless बताया है उद्देश्यहीन। यह सृष्टि उद्देश्यहीन होना प्रतीत होती है। सरस्वती अंडरस्टूड, सरस्वती उनकी भावनाओं को समझ गई, फीलिंग्स भावनाओं को समझ गई। एंड टोल्ड हिम, और उनसे कहें, वेल अच्छा, लेट मी डू माई शेयर इन द ग्रेट वर्क। जब वाक्य की शुरुआत लेट से हो जाती है तो उसमें अर्थ होता है, हिंदी अर्थ अंत में दो से समाप्त होता है। लेट मी डू माई शेयर इन द ग्रेट वर्क। इस महान कार्य में मुझे भी शेयर लेने दीजिए, इस महान कार्य में मुझे भी हिस्सा लेने दीजिए। You have created all this beauty, splendor. आपने यह सब सुंदरता तथा वैभव की रचना किया है। I shall create in our children the power to respond, to appreciate and be uplifted by them. मैं उनके द्वारा by them, उनके द्वारा uplifted, ऊपर उठने के लिए, प्रशंसा करने के लिए, appreciate प्रशंसा करने के लिए, respond प्रतिक्रिया करने की शक्ति बच्चों के अंदर क्रिएट करूंगी, पैदा करूंगी। I shall give them music, other arts. मैं उन लोगों को संगीत तथा दूसरी कलाओं को प्रदान करूंगी, which will draw out from deep within them the capacity to respond to the majestic splendor and exquisite charm and wondrous beauty of all creation. मैं उन लोगों को संगीत तथा दूसरी कलाओं को प्रदान करूंगी जो सभी सृष्टि, ऑल क्रिएशन, सभी सृष्टि की आश्चर्यजनक सुंदरता, अति सुंदर आकर्षण, शानदार वैभव के प्रति प्रतिक्रिया करने की कैपेसिटी, क्षमता उनकी गहराई से ड्रा आउट करेगा, आकर्षित करेगा। The great muse gave us music. वह महान संगीत की देवी, ग्रेट म्यूज संगीत की देवी, वह संगीत की देवी तब हम लोगों को म्यूजिक एंड अदर फाइन आर्ट्स, संगीत तथा दूसरी ललित कलाओं को प्रदान की। इन द होप, आशा में, दैट थ्रू देम, उनके द्वारा, man would understand something of divine in his manifestation. उनके द्वारा, through them, उनके द्वारा, man would understand something of divine in his manifestation. आदमी अपने अस्तित्व में, manifestation, अपने अस्तित्व में कुछ दैवी गुणों को समझेगा, कुछ दैवी तत्व को समझेगा। ये स्ट्रेंज स्टोरी क्वेश्चन मार्क लग गया है। स्टोरी क्वेश्चन मार्क, क्या एक विचित्र कहानी है, बट इट हैज ग्रेट मॉरल, परंतु यस, हाँ, बट इट हैज ग्रेट मॉरल, हाँ, इसमें बहुत बड़ा नैतिक है, बड़ा महान उपदेश है। वन ऑफ द बेसिक ट्रूथ ऑन विच ऑल इंडियन आर्ट इज डेवलप्ड, प्रारंभिक सत्यों में से एक सत्य है, ऑन विच, जिस पर ऑल इंडियन आर्ट इज डेवलप्ड, जिस पर सभी भारतीय कला का विकास किया जाता है। इज दैट ट्रू, वह सत्य है। आर्ट, ट्रू आर्ट इज नेवर मेड टू ऑर्डर, सच्ची कला किसी के आदेश पर नहीं बनाई जाती है। इट कम्स एज रिजल्ट ऑफ इनसिस्टेबल इनर अर्ज, यह न झुकने वाली आंतरिक प्रेरणा के फल स्वरूप उत्पन्न होती है। We hear a song of त्यागराज, त्यागराज एक संगीतज्ञ हैं। We hear a song of त्यागराज, जब हम लोग त्यागराज के गाने को सुनते हैं, are enthralled, मंत्रमुग्ध हो जाते हैं।
जब भी हम लोग त्यागराज के गाने को सुनते हैं तो मंत्र मुग्ध हो जाते हैं। तो वी सी मैजेस्टिक टेम्पल टावर, किसी मंदिर के गुंबद को, किसी शानदार मंदिर के गुंबद को देखते हैं तो गेज ऑन इट विथ वंडर, तो आश्चर्य के साथ टकटकी लगाकर देखने लगते हैं। गेज का सेम मीनिंग स्टेयर होता है। वी सम आवर एंशिएंट स्कल्पचर, जब हम लोग महान प्राचीन कलाकृतियों को देखते हैं तो फील थ्रिल्ड, तो प्रफुल्लित हो जाते हैं। व्हाई, क्यों, ये तीनों का प्रश्न है गया। व्हाई, क्यों बताया जा रहा है। बिहाइंड ऑल सच वर्क ऑफ आर्ट इज नेवर ग्रेट स्पिरिचुअल आर्ट, ऐसे कला के ऐसे सभी कार्यों के पीछे इज ग्रेट स्पिरिचुअल आर्ट, एक महान आध्यात्मिक प्रेरणा होती है, एक महान आध्यात्मिक प्रेरणा होती है। बिहाइंड ऑल सच वर्क ऑफ आर्ट इज ए ग्रेट स्पिरिचुअल आर्ट, कला के ऐसे महान कार्यों के पीछे एक ग्रेट स्पिरिचुअल आर्ट, एक महान आध्यात्मिक प्रेरणा होती है। द आर्टिस्ट हु गेव देम टू अस, कलाकार जो उन्हें हम लोगों को प्रदान करते हैं, जो हम लोगों को प्रदान करते हैं, अस लिखा है, टू अस हम लोगों को प्रदान करता है, poured their devotion into the shape of such work of art, ऐसे अति सुंदर कला के ऐसे अति सुंदर कार्यों को रूप देने में, शेप देने में, into the shape, रूप देने में, their devotion, और अपनी पूरी भक्ति को उड़ेल देता है। It was an act of self-effacing dedication, और यह अहंकार रहित कार्य होता है, अहंकार रहित कार्य होता है। आप लोगों को हिंदी बताया, पूरे लाइन का हिंदी बताया। मैंने बताया था कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना किए और वह शानदार पर्वत श्रृंखलाएं, गरजते हुए झरने, अति सुंदर फूल, अति चंचल हिरण की रचना किए और अपनी रचना में आकर्षण, वैभव को भर दिए, परंतु दुखी थे क्योंकि मानव संवेदना रहित होकर के चला जाता था, संवेदना रहित होकर के नजरअंदाज कर देता था। तो उनके दुख का कारण उनकी पत्नी सरस्वती पूछी तो बताए कि ये सृष्टि जो बनी है उद्देश्यहीन है। तब वह कहीं, उनकी पत्नी सरस्वती कहीं कि मुझे भी इस कार्य में हिस्सा लेने दीजिए। तो वह संगीत तथा दूसरे ललित कलाओं की उत्पत्ति की और मानव को प्रदान की। अब इसके आगे मैंने आप लोगों को क्वेश्चन दूंगा। पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस। इसी पैरा पर क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, राइट द नेम ऑफ द लेसन फ्रॉम विच द एबव पैसेज हैज बीन टेकन। हु इज द ऑथर ऑफ दिस लेसन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमेशा परीक्षा में पूछता रहता है। उत्तर लिखना उतने इजी भी है, जितना पूछता है उतना इजी है। प्रश्न का उत्तर लिखते समय हमेशा हम लोगों को क्वेश्चन से ही ज्यादा से ज्यादा शब्दों को टेकअप करना चाहिए। क्वेश्चन, उसी में सब्जेक्ट देखना चाहिए, जिस टेंस में प्रश्न पूछता है उसी टेंस में उत्तर देना चाहिए। अब देखिए, राइट द नेम ऑफ द लेसन फ्रॉम विच द एबव पैसेज हैज बीन टेकन। उपर्युक्त पैसेज लिए गए हैं, फ्रॉम विच से उस पाठ का नाम लिखिए। एकदम से लिखा, फ्रॉम विच द एबव पैसेज हैज बीन टेकन
जिससे उपयुक्त पैसेज लिया गया है उस पाठ का नाम लिखिए। हु इज द ऑथर ऑफ दिस लेसन, इस लेसन का लेखक कौन है। उत्तर लिखने के लिए इसी में से ज्यादा शब्दों को शॉर्ट करना चाहिए। एवं उत्तर हम बता रहे हैं, प्रश्न से देखो, एवं पैसेज हैज बीन टेकन, एकदम प्रश्न से सब लिखा गया। द एवं पैसेज हैज बीन टेकन, इसके बाद फ्रॉम लिख देंगे, फ्रॉम, प्रश्न में ही फ्रॉम लिखा है, फ्रॉम लिख देंगे। द लेसन, और द लेसन लिख करके उसका नाम लिख देंगे, जिस पार्ट का रहेगा उस पार्ट का नाम लिख देंगे। आवर इंडियन म्यूजिक स्टोरीज एंड एंटीडोट्स, इसमें ओ कैपिटल होगा, आई कैपिटल होगा, एम कैपिटल होगा, एस कैपिटल होगा और ए कैपिटल होगा। आवर इंडियन म्यूजिक एंड एंटीडोट्स। इसी प्रश्न में अगला क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ द लेसन। हु से जब भी प्रश्न पूछा जाता है तो सब्जेक्ट ही उत्तर होता है। हु के स्थान पर उसी सब्जेक्ट को लिखकर अब बचे हुए शब्दों को ज्यों का त्यों लिख देते हैं। तो हु इज द ऑथर ऑफ दिस लेसन, तो आर श्रीनिवासन इज द ऑथर ऑफ दिस लेसन। आर श्रीनिवासन इज द ऑथर ऑफ दिस लेसन। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूजिक फुल ऑफ। भारतीय संगीत का इतिहास किससे फुल ऑफ है, किस चीज से भरा हुआ है। प्रश्न बड़ा इजी है। सब्जेक्ट के रूप में शब्द है द हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूजिक। द हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूजिक, द हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूजिक इज फुल ऑफ, बताया गया था पढ़ाते वक्त, स्टोरीज एंड एंटीडोट्स। अगला क्वेश्चन है, हु मेड दिस यूनिवर्स। हु से जब भी प्रश्न पूछते हैं तो हु के स्थान पर सब्जेक्ट को ही लिख देते हैं। सब्जेक्ट लिख करके अब बचे हुए शब्दों को ज्यों का त्यों लिख देते हैं। उत्तर एकदम पूर्ण। हु मेड दिस यूनिवर्स, तो ब्रह्मा मेड दिस यूनिवर्स। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डिड ब्रह्मा क्रिएट। व्हाट डिड ब्रह्मा क्रिएट, ब्रह्मा ने क्या रचना किया। ब्रह्मा जी ने क्या रचना किया, ये प्रश्न है लड़के। तो आंसर है, सब्जेक्ट इसमें ब्रह्मा है, क्रिया क्रिएट है। जिस प्रश्न में डिड बताए थे अभी अभी कि जिस टेंस में प्रश्न पूछता है उसी टेंस में उत्तर देते हैं। जिस प्रश्न में डिड लगा हो, डिड, तो उत्तर देते समय क्रिया सेकेंड फॉर्म में हो जाती है। हमेशा बच्चे, जिस प्रश्न में डिड लगा हो उत्तर देते समय हमेशा क्रिया सेकेंड फॉर्म में होती है। तो ब्रह्मा सब्जेक्ट हो गया, क्रिएट फर्स्ट फॉर्म है, क्रिएटेड सेकेंड कर देंगे, क्रिएटेड, और जो जो वस्तु बनाए थे उसका नाम लिख देंगे। ब्रह्मा क्रिएटेड द मजेस्टिक माउंटेन रेंजेस, शानदार पर्वत श्रृंखलाएं। द थंडरिंग वाटरफॉल्स, थंडरिंग वाटरफॉल्स, गरजते हुए झरने। द जियांट फॉरेस्ट ट्रीज, बड़े बड़े जंगली पेड़। जियांट को बताए थे मीनिंग। द निम्बल डियर, अति चंचल हिरन। द कलरफुल पिकार, रंग बिरंगे मोर। मैं ये बताया बच्चे आपको क्वेश्चन। इसके बाद माय डियर स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों को आर श्रीनिवासन के बारे में बताया, प्रोज पैरा के बारे में बताया, डिफिकल्ट वर्ड के बारे में बताया, समरी थोड़ा सा अंग्रेजी में है,
कि ब्रह्मा जी मेड दिस यूनिवर्स, ही क्रिएटेड the majestic mountain ranges, thundering waterfalls, colorful peacocks, exquisite flowers, giant forest trees, and he filled splendor, beauty, charm in his creation. But he was sad because human beings simply pass them by. They do not seem to be sensitive. They do not seem to be sensitive. His consult, Saraswati asked about the reason of his sadness. और हिंदी में ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना किए, वो अपने सृष्टि में शानदार पर्वत श्रृंखला, गरजते हुए झरना, अति सुंदर फूल, रंग बिरंगे मोर, जंगली पेड़ इत्यादि की रचना किए और अपनी रचना में आकर्षण, सुंदरता, वैभव इतना भर दिए, नहीं बहुत भरे, परंतु वो निराश थे, दुखी थे, क्योंकि मानो ह्यूमन बीइंग्स डू नॉट सीम्स टू बी सेंसिटिव। उनकी पत्नी सरस्वती उनके दुख का कारण पूछी और कहीं कि इस महान कार्य में मुझे भी हिस्सा लेने दीजिए। तब वह अपने बच्चों के अंदर प्रतिक्रिया करने की क्षमता तथा उससे ऊपर उठने के लिए म्यूजिक, संगीत तथा दूसरे ललित कलाओं को प्रदान की। अब मेरे प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों को डिफिकल्ट वर्ड बताया, क्वेश्चन बताया और मैं विश्वास करता हूँ कि आप लोगों को सब समझ में आया होगा। ठीक है, धन्यवाद।